Hello, good morning students. It's Gurpal Singh, your accountancy and economics teacher. So students, in the last videos we have solved number of questions related to depreciation using straight line method as well as diminishing value method, and we have solved the questions related to provision for depreciation also. So I hope you all are getting all the things whatever discussed in videos, and you are solving numericals, but still only few students are sending their notes from the notes book in the group. So it's my humble request to you all, submit your notes and your copy from your copy in the WhatsApp group, right? And those who are not doing, start doing, otherwise we are going to remove your numbers from the group. Okay, so let's start. Today's we are having question number 32 from a DK Goel book. That question is 32 on 1st April 2010. When? On 1st April 2010. Following balances appeared in the books of MS Krishna Traders. Furniture account 50,000. Provision for depreciation account. On 1st October 2010, a part of furniture purchased 20,000 on 1st April and was sold for 5,000. On the same date, a new furniture costing 25,000 was purchased. The depreciation was provided 10% on the original cost assets, and depreciation was charged on the assets in the year of sale. Prepare furniture account and provision for depreciation account. Okay, depreciation was provided on at the rate 10% on original cost of the assets, and depreciation was charged on assets. Okay, we have to prepare furniture account, provision for depreciation account, right? So first of all, we will prepare furniture account. Two machineries were purchased. One was purchased for 50,000, but out of it 20,000 machinery was sold. So we will make it into two parts, 30,000 and 20,000 on October 1, whereas on April 1 2010, and another machinery was purchased on 2010 for 25,000. Okay, so here we will prepare furniture account only on that date whenever machinery was sold off, because in this we are preparing furniture account and provision for depreciation. ओके, तो फर्नीचर अकाउंट आपको उसी डेट पे बनाना है जिस दिन असेट सेल हो रहा हो. बार बार आपकी सेम वैल्यू रहेगी तो उसको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है. सिंपली यू कैन प्रिपेयर डायरेक्ट फर्नीचर अकाउंट, एंड वेन एवर मशीनरी बिकम सोल्ड on that date, till that date you have to charge depreciation. Okay, so till that date, with the help of provision for depreciation account, we have got a depreciation on the machinery of costing how much? 20,000 was 8,000, and it was sold for 5,000. So 8 7 5 13, and its cost was 20,000. so 20 minus 7 आप करेंगे तो it will be 13,000. देखिए हिंदी में बता दूं बेटे, 20,000 की मशीनरी थी, उसको जब बेचा गया 1 अप्रैल 2000 को ख़रीदी थी हमने, और 1 अक्टूबर 2010 में बेचा गया. तो कितने का बेचा गया? 5,000. तो 1 अक्टूबर 2010 तक उसका जो डेप्रिसिएशन बना है वो बना है 8,000. अब स्टूडेंट सोच रहे होंगे सर ने 8,000 कहाँ से ला दिया. सो जस्ट एट द नेक्स्ट स्टेप आई विल शो यू हाउ दिस 8,000 केम, कैसे ये 8,000 आया है. और टोटल आपका लॉस ऑन सेल कितना हो गया? प्रॉफिट और लॉस यानी कि लॉस हुआ सेल पे 7,000. किस तरह से आया ये? देखिए 20 की कॉस्ट है, 13 खर्चा निकल गया तो 7,000 बच जाएगा. ठीक है, अब ये 8,000 मैंने कैसे बताया बेटा? देखिए हेयर वी आर प्रिपेयरिंग प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट ना. सो इन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट एज ऑलरेडी टोल्ड यू कि वी आर कैलकुलेट डेप्रिसिएशन एवरी ईयर, बट एट द लास्ट व्हेन एवर मशीनरी इज गोइंग टू सेल, at that time we transfer its depreciation. Okay, at that time we will transfer its depreciation, right? Here furniture by balance BD, till that depreciation was 22,000,
and for the next year on 25,000 costing it was 4250. Okay, so to transfer to machinery account, its total part of depreciation of 20,000 was 8,000 and remaining 18,250 will be carried down. Okay, 8,000 किस प्रकार से आया, तो यहाँ पे भी मैंने डायरेक्ट कर दिया है. We will charge better depreciation 10% every year. Okay, on 1 April it was purchased 2006, तो बेटा 6 से 7 का depreciation 20,000 का कितना हो गया, 2,000 हो गया. 7 से 8 का कितना हो गया, 2,000 हो गया depreciation 10%. 8 से 9 का कितना हो गया, 2,000 हो गया. और 9 से 31 मार्च तक कितना हो जाएगा, 2,000. ठीक है, तो 4 साल का 20,000 पे 10% कितना हो जाएगा, 8,000. इसलिए 20,000 का डेप्रिसिएशन 8,000 जो आया है डायरेक्ट 1 अक्टूबर 10 में इट विल ट्रांसफ़र टू द डेबिट साइड ऑफ डेविएशन अकाउंट. ठीक है, 4 साल का डेप्रिसिएशन 8,000 हो जाएगा. समझ में आ गया किस तरह से आया. फिर भी ना समझ में आ रहा हो, 20,000 की मशीनरी है, हर साल का आप लगा लीजिए. देखिए पहले 6 में खरीदी गई थी, 6 से 7 का 2,000 पहले साल, 7 से 8 का 2,000, 8 से 9 का 2,000, 9 से 10 का 2,000. ओके, एंड उसके बाद में अब वैल्यू जो बचती है मशीनरी की वो कितनी, 12,000. बिकी कितने की, 5,000 रुपये, तो 7,000 क्या हो गया, लॉस ऑन सेल हो जाएगा. राइट. आफ्टर दैट अब 30,000 का डेप्रिसिएशन पूरे साल का 3,000. राइट. 2,500 का 6 महीने का डेप्रिसिएशन 1,250, तो 4,250. ये जो डेप्रिसिएशन भाई लिखा गया है ये आपका यहाँ कैरी डाउन में रहेगा. राइट. तो इज इट क्लियर, समझ में आ गया सभी को किस तरह से करा है. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 35. राइट योर क्वेरीज इन योर कमेंट सेक्शन. अगर आपको क्वेश्चन नंबर 32 जो भी सॉल्व किया हम लोगों ने समझ में नहीं आया है, पुट अप योर कमेंट इन द कमेंट बॉक्स. Now this is 35 question. Question is ABC Limited purchased on 1 April 2006 a small plant for 1 lakh. On 1 October 2006 an additional plant was purchased costing 50,000. On 1 October 2010 7 the plant purchased on 1 April 2006 have become obsolete and was sold for 40,000. Okay. Depreciation was provided on it at the rate 10% of original cost method 31st March every year. Show the plant account, provision for depreciation account and plant disposal account for the year 6 to 7 and 7 to 8. क्या कह रहा है, फिर से देखते हैं. प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट एंड प्लांट डिस्पोजल अकाउंट. राइट. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी व्हेन इट वाज परचेज ऑन 1 अप्रैल 2006. कितने की, 1 लाख की, 1 लाख की. 1 अक्टूबर में 50,000 की और ख़रीद ली. अब जो कह रहा है ऑन 1 अक्टूबर 2007 परचेज फॉर दैट ऑन 2007 सॉरी द प्लांट परचेज ऑन 1 अप्रैल 6, जो 1 अप्रैल 2006 में हमने 1 लाख का ख़रीदा है वो ख़राब हो गया और 40,000 का बेच दिया गया. ओके. सो देखिए जिस साल में ख़रीदा गया था अब उसको स्टार्ट करिए, क्लोज़ कर दीजिए 150 एंड 7 में शुरू करते हैं. 1 अप्रैल 2007 में टोटल मशीनरी हमारे पास कितनी है, 150 की. आउट ऑफ विच ऑन 1 अक्टूबर 2007 मशीनरी ऑफ 1 लाख वाज सोल्ड ऑफ. तो जब प्लांट डिस्पोजल अकाउंट बना रहे हो तो आप प्लांट अकाउंट में कुछ भी नहीं करोगे, ना सेल करोगे ना गेन करोगे. डायरेक्टली जिस डेट पे सेल हो रहा है कोई भी एसेट्स उस डेट में हम उसको प्लांट डिस्पोजल या मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे. ओके. सो प्लांट डिस्पोजल अकाउंट क्रिएट कर दिया 1 लाख से. अब 1.5 लाख की मशीनरी थी, 1 लाख की डिस्पोजल से मैं चले. डिस्पोजल मीन सेल्स अकाउंट. ओके. जो भी एसेट्स हो रहा है उसको सेल करने के, डिस्पोज ऑफ करने के लिए जो अकाउंट बना रहे हैं. मशीनरी रह गई 50,000 की. ओके. आफ्टर दैट वी विल प्रिपेयर प्लांट डिस्पोजल अकाउंट. नाउ यार ऑन अक्टूबर 1 को सेल होनी थी, उस दिन देखा गया इसके बाद वैल्यू कितनी है, 1 लाख की. अब उस दिन देखा जाएगा कि 1 अक्टूबर तक 1 अप्रैल 2006 से लेकर के 1 अक्टूबर 2007 तक कितना डेप्रिसिएशन बन गया है. देखिए 31 मार्च 2007 तक डेप्रिसिएशन था आपका कितना, 12,500. उसको 12,500 रहने दिया, ब्रॉड डाउन किया 12,500
और 1 अक्टूबर 2007 तक डेप्रिसिएशन 1 लाख का कितना हो गया, 10,000 पूरे साल का है, 6 महीने का कितना हो जाएगा 5,000। ओके, सो टोटल 10,000 पूरे साल का, 1.5 ईयर का 15,000 हो गया। 15,000 आपका किस में चला जाएगा, प्लांट डिस्पोजल अकाउंट में। पिछले क्वेश्चन में किस में गया था, प्लांट अकाउंट में, बट हेयर वी आर प्रिपेयरिंग बेटा प्लांट डिस्पोजल अकाउंट, सो इट विल बी ट्रांसफर टू प्लांट डिस्पोजल अकाउंट, राइट। 15,000 हो गया। इट वाज सोल्ड फॉर 40, तो 40 हो गया, तो 1055। अब 1 लाख से अगर हम लोग 1 लाख से फ्रॉम 1 लाख वी आर सब्ट्रैक्टिंग 45, then there will be loss of 55,000, ठीक है। so we have to write 45,000 as loss, okay। and remaining देखिए डेप्रिसिएशन टोटल कितना रिमेनिंग बचता है, 12,000 है, 5 17 5 21 21 में 15 चला जाएगा 22 में, तो 7,500 का आपका प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का अकाउंट बैलेंस दिखाएगा, ओके। सेम चीज़ आपको फिर से बता दूं, ये आपका वर्किंग नोट 2 से डेप्रिसिएशन 5,000 कैसे निकला है कि पहले तो आपके पास जो 50,000 की मशीनरी है उसका 10% जो है 5,000 निकाला हमने, ठीक है, और 10% 5,000 जो आया हमने वही आपका यहाँ पे बेटे ट्रांसफ़र कर दिया है। बाकी ये लॉस ऑन सेल मैंने आपको बता ही दिया, 1 साल का पहले साल का डेप्रिसिएशन 10,000 90,000, इसके बाद फिर 6 महीने का 5,000 माइनस करा तो 85,000, 85 वाली 40 में गई तो लॉस कितने का हो गया, 45,000 का, ओके। हैव यू गॉट इट दिस, अगर समझ में आ गया है तो यस बोल दीजिए, ठीक है। इफ़ यू आर नॉट गेटिंग स्टिल देन बेटा पुट योर कमेंट्स, आई विल सॉल्व इट अगेन। देखिए बेटा प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं है, बस इतना आपका इजी और कर दिया गया है कि जो भी असेट्स है उसका हर साल का जो डेप्रिसिएशन है आप एक अलग जगह पे लिखते चले जाइए, ठीक है। देयर इज़ नथिंग एल्स, okay. Earlier we are transferring everything in the machinery account, but whenever we are able to know the next lasers, so in these lasers only we have to transfer the transaction related to individual laser in the individual account, okay. In plant account there is nothing necessary that you have to transfer every year machinery account, वो खाली एक अंडरस्टैंडिंग के लिए आप डायरेक्ट एक मशीन अकाउंट बनाइए जिस दिन आप सेल कर रहे हैं उस दिन तक ही उसकी शुरुआती बिगनिंग वैल्यू लिख दीजिए। बाकी प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट से बेटा कहाँ से, फ्रॉम प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट यू ट्रांसफ़र द डेप्रिसिएशन टिल दैट डेट, आफ्टर दैट फ्रॉम द वैल्यू ऑफ मशीनरी you subtract the value of depreciation, you will be get the actual new book value of the machinery, whatever new value you have got it, charge depreciation for the remaining months, or if you have already calculated depreciation, so directly sale off and whatever subtract from the sale money. If you are getting gain, so write it in the debit side, if you are getting loss then write it in the credit side, okay. So I hope it is very clear and nobody is having now doubt, and chapter is most probably going to complete, and if someone is having problem you are free to contact us. We are providing 24-hour services, as well as better you have to work hard. If you are not doing anything then we cannot do anything for you, okay. And exams are coming very soon, your online examination are going to be start, okay. So in that you have to appear, and if you are not appearing in that then you will not be promoted to class 12, okay. So this is very necessary, you have to keep in your mind. So thank you students for watching this video. I hope आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक ज़रूर करिएगा। बाय बाय।